Morning students. Students, we are going through the second part of chapter 7 from the Flamingo, and the title of the chapter is The Interview. Children, in this second part, the interview of a professor named Umberto Eco is given, and this second part is a small piece from the big interview of Umberto Eco, and the interviewer is मुकुंद पद्मनाभन. देखिए, ये जो सेकेंड पार्ट है इसमें प्रोफेसर अम्बर्टो इको का इंटरव्यू जो कि मुकुंद पद्मनाभन के द्वारा लिया गया था उसका एक छोटा सा हिस्सा है. एंड द इंटरव्यूअर मुकुंद पद्मनाभन asks many questions. He takes a big interview of the professor and comes to know about the inner feelings of the professor. So children, we are going to start the interview. Now see the book on page number 70. Mukund, the English novelist and academic David Laws once remarked, I can't understand how one man can do all the things he Eco does. तो देखिए, मुकुंद पद्मनाभन ने जब इंटरव्यू लेना स्टार्ट किया तो उनका पहला ये क्वेश्चन था कि डेविड लॉज ने एक बार रिमार्क किया. डेविड लॉज हु वॉज ए फेमस इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड एकेडमिक, तो ही मेक्स दिस रिमार्क कि आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, कि मैं इस बात को नहीं समझ सकता कि हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स ही, एक व्यक्ति एक ही समय में कितने काम कर सकता है. और वो कौन है? अम्बर्टो इको. He puts this question in front of him. Now Umberto Eco, maybe I give the impression of doing many things, but in the end I am convinced that I am always doing the same thing. अब देखिए, Umberto Eco gives the answer and says that although he does many things at one time, but he always thinks that he is always doing the same thing. So Mukund says, which is Umberto Eco? Now that is more difficult to explain. तो देखिए, Umberto Eco कहते हैं कि इसे एक्सप्लेन करना काफ़ी डिफिकल्ट है, टफ है. I have some philosophical interest and I pursue them through my academic work and my novels. As the professor has some philosophical interest, जैसा कि प्रोफेसर कहते हैं कि मैं कुछ philosophical interest रखता हूँ, और कहता है मैं उसके अपने उस इंटरेस्ट को अपने एकेडमिक वर्क और नॉवेल्स के थ्रू सबके सामने लाने का प्रयास करता है. Even my books for children are about non-violence and peace. कि whatever books the professor has written for children, so he has also given a big lesson to them. And these books for children are about non-violence and peace. अब देखिए, कहते हैं कि जो उनकी बच्चों के लिए बुक्स, जो उन्होंने बच्चों के लिए बुक्स लिखी हैं, उनमें भी उन्होंने नॉन वायलेंस और पीस के बारे में लिखा है. यू सी द सेम बंच ऑफ एथिकल philosophical interest.
जिसमें कि उन्होंने फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट के बारे में बताया है और मोरल्स के बारे में बताया है। मीनिंग देयर वाई he has written many books for children and he has also given them the lesson of non-violence and peace, and these books are also full of moral values and ideas. And then I have a secret. अब देखिए प्रोफेसर कहते हैं कि मैं एक प्रकार का सीक्रेट रखता हूँ. Did you know what will happen if you eliminate the empty spaces from the universe? अब देखिए कहते हैं कि आप सोचते हैं कि पूरे यूनिवर्स में whatever empty spaces there, प्रोफेसर इंटरव्यूअर से कहते हैं, मुकुंद पद्मनाभन से कहते हैं कि क्या होगा जब पूरे यूनिवर्स में जितना भी खाली स्थान है उसे एलिमिनेट कर दिया जाए, उसे रिमूव कर दिया जाए. एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस इन ऑल द एटम्स. और कहते हैं जितने भी एटम्स हैं उनमें जो भी एम्प्टी स्पेस है उसे एलिमिनेट कर दिया जाए, उसे हटा दिया जाए. तो द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माई फिस्ट. तो जो पूरा ब्रह्मांड है, पूरा जो यूनिवर्स है वो इतना बड़ा रह जाएगा जितनी की मेरी मुट्ठी, फिस्ट. इफ ऑल द एम्प्टी स्पेसेस वुड बी रिमूव्ड फ्रॉम दिस यूनिवर्स, द यूनिवर्स will become as big as my fist. Similarly, we have a lot of empty spaces in our lives. ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी बहुत सारा empty space है, खाली स्थान है. I call them interstices. कहता है मैं उसे interstices कहकर पुकारता हूँ, एक प्रकार का गैप कहकर पुकारता हूँ. Interstices stands for a gap or interval. Say you are coming over my place. अब देखिए कहते हैं कि मान लीजिए यदि आप मेरे पास आ रहे हो, मेरे घर आ रहे हो. Say you are coming over to my place. You are in an elevator and while you are coming up, I am writing for you. कि if you are coming to my apartment, यदि आप मेरे अपार्टमेंट में आ रहे हैं और मान लीजिए कि आप एलिवेटर से आ रहे हैं, लिफ्ट से आ रहे हैं, एलिवेटर स्टैंड्स फॉर द लिफ्ट. एंड वाइल यू आर कमिंग अप टू माई अपार्टमेंट, आई एम राइटिंग फॉर यू. और मैं आपके लिए लिख भी रहा हूँ और आपका वेट कर रहा हूँ. दिस इज एन इंटरस्टाइस, एन एम्प्टी स्पेस. बोले ये इंटरस्टाइस है, ये एक एम्प्टी स्पेस है. गिविंग a kind of example, the professor says to the interviewer that we have a lot of empty spaces in our lives. I work in empty spaces. तो कहते हैं मैं इस empty space में काम करता हूँ. अब देखिए एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि यदि आप मेरे घर आ रहे हैं और एलिवेटर में हैं और मैं आपको वेट कर रहा हूँ, आपकी आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, तो ये एक इंटरस्टाइस है, एक गैप है. तो कहते हैं आई वर्क इन एम्प्टी स्पेसेस. तो कहते हैं मैं इस एम्प्टी स्पेस में काम करता हूँ. वाइल वेटिंग फॉर योर एलिवेटर टू कम अप फ्रॉम द फर्स्ट टू द थर्ड फ्लोर. कि जब आप एलिवेटर से फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर पर आ रहे हैं तो आई हैव ऑलरेडी रिटेन एन आर्टिकल. तब तक मैं एक आर्टिकल लिख चुका हूँ. आई हैव ऑलरेडी रिटेन एन आर्टिकल. Laughs. अब देखिए saying this thing, he starts laughing. और ये कहते हुए वो हंसना शुरू कर देते हैं. So children, the next question, whatever is asked by the interviewer is, now Mukund asks
नॉट एवरीवन कैन डू दैट ऑफ कोर्स। अब देखिए मुकुंद कहते हैं वास्तव में कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। योर नॉन फिक्शनल राइटिंग, योर स्कॉलरली वर्क हैज़ ए सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट। इट इज ए मार्क्ड डिपार्चर फ्रॉम ए which is invariably depersonalized and often dry and boring. Have you consciously adopted an informal approach, or is something that is just came naturally to you? अब देखिए फिर कहते हैं कि whatever personal quality about your writing is, whatever personal quality about your writing is, तो मुकुंद पद्मावन कहते हैं कि वास्तव में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। और कहते हैं कि जो आपका नॉन फिक्शनल राइटिंग है, जो भी आपका स्कॉलरली वर्क है, वो बहुत ज़्यादा प्लेफुल और उसमें आपने पर्सनल फीलिंग्स को डाला है। इट इज़ ए मार्क डिपार्चर फ्रॉम ए रेगुलर एकेडमिक स्टाइल, जो कि थोड़ा रेगुलर एकेडमिक स्टाइल से हटता है। विच इज़ इनवेरिएबली डीपर्सनलाइज्ड, जो कि लगभग डीपर्सनलाइज्ड है, एंड ऑफन ड्राई एंड बोरिंग, और जो लगभग ड्राई और बोरिंग है। तो हैव यू कॉन्शियसली अडॉप्टेड एन इनफॉर्मल अप्रोच, क्या वास्तव में आपने एक इनफॉर्मल अप्रोच को अडॉप्ट किया है, और इट इज़ समथिंग दैट जस्ट केम नेचुरली टू यू, या ये वो है जो नेचुरली आपको प्राप्त हुई है, और दिस थिंग वट एवर यू हैव अडॉप्टेड naturally. So students, we shall go through the answer of this question in the next lecture. Whatever answer was given by the professor to the interviewer, we shall see in the next lecture. Thank you.